Anyone? Anything? We learned that death is the beginning of a new life. Okay, good. Death is the beginning. Death is not the ending. Okay. When I heard this first time, when I came to ISKCON, I क्या बात कर रहे हैं, है ना? So earlier I used to go in some other these places also. So there is one institution called Art of Living. You know that? Art of Living. So when I first time came to the Bhagavad Gita class there, so I said, what do you teach? They said, we teach art of dying. How to die properly so that you get the very good birth in the next life, right? It's also important to plan for future, right? Yeah. Okay. Anything else that you learned? Anyone? Please pick up. Don't worry. आप टेंशन मत लीजिए. आपके आंसर का वीडियो काट के हम रील नहीं बनाएंगे, ठीक है? या तो आपको पिछले बार का सब समझ आ गया या तो कुछ समझ नहीं आया, दोनों में से एक होना चाहिए. So I think you are learning about the mind. I'll give you some hint. You learn something about the mind. What is the mind? Mind को किससे compare किया जाता है? How to understand the mind? There is a comparison that Prabhuji made last time, right? How to compare the mind? Oh, don't show notes. I cannot check, na? You can speak. So what is the mind compared to? Mind is compared to software. Software, hardware, पता है आपको? शरीर, body is compared to the hardware. Mind is compared to the software. Yes. So that comparison we can remember that mind is compared to the software. Okay. Next thing that we have to understand is, you see, I will tell you some facts. Okay. In year 2000, okay, just some facts. ध्यान से सुनिएगा. In the year 2000, इंडिया में जो प्रिजन पॉपुलेशन था, प्रिजन समझते हैं, जेल का पॉपुलेशन, वो क्या था? इट वॉज अराउंड 2,72,000. इतने सारे लोग जेल में थे. देन इन अराउंड 2018 अगेन दिस रिकॉर्ड वाज टेकन एंड इट वाज 4,66,000, almost double. Yeah. Okay, then I was looking at some of the suicide statistics of India. Then I came to know that in 2018, this year, I was looking at that year only mainly because मैं तब college में था, I was like passing out 4th year. So I was looking at that year what had happened. So 2018, 1.39 lakh people had committed suicide only in India, which boils down to 15 suicides every hour. एवरी आवर समझते हैं आप? अगर मैं आपसे 1 घंटा बात करूं, इतने देर में कितने लोग ने सुसाइड कर लिया है? 15 लोग ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया होगा. अभी अगर मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, 1-2 अभी तक निकल चुके होंगे, यू नो. एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुसाइड इज नॉट नॉर्मल थिंग. सुसाइड ऐसे नहीं जैसे आम खा लिया वैसे सुसाइड कर लिया. Suicide means a state of mind in which you are thinking there is no more solution left in my life to do anything than to finish. Right? And how many of you think that suicide is only committed by very poor, जिनके पास खाने को नहीं है? हाउ में आपने देखा हावड़ा ब्रिज के नीचे एक गरीब ने किया सुसाइड? Who committed suicide? You know, I was a fan of Linkin Park. You know Linkin Park? It's a very famous band when I was student. So the lead singer of the band, his name is Chester Bennington. So very see sometime his voice is very special. It's very special voice. People cannot sing like him. It is said that this person was so famous that when he will get on the stage, वो चढ़ रहा है स्टेज में in Toronto for a live concert, ambulances used to be standing, क्योंकि लोग उसको देख के बेहोश हो जाते थे. गाना तो सुनना दूर की बात है. He was so famous, and this person committed suicide. He had no dearth of
anything in this world, no dearth of money, no dearth of fans, no dearth of fame, he committed suicide. अरे वो तो छोड़ो, वो तो सिंगर था, one of the biggest comedians of all time, Robin Williams, I think his name is, very very famous person. Williams, what is the first name? I forgot. Some Williams, the very famous comedian. He committed suicide. He is making others laugh and he is committing suicide. Similarly, so many famous people have committed suicide, very successful people. If we think that suicide is committed by, and it is increasing, right? Suicide rates have become so high. Similarly, depression. मेरा एक स्टूडेंट है, वो डिप्रेशन का पिल लेता है, क्लास 10 का स्टूडेंट है. सर टेंशन बहुत है सर. मैं बोला तुमको क्या टेंशन है? फीस तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है, मेहनत तुमको, ऑफिस तुमको जाना नहीं पड़ता, यू हैव सम बुक्स, रीड, गेट सम मार्क्स, दैट टू इन सीबीएसई. इतना टेंशन है 10th में. तो children are taking so many depression pills. I heard that in the Europe, what is the most successful profession? Can anyone tell? I'm just giving all of you option. अगर आपको ये प्रोफेशन करने का जिंदगी में मौका मिले तो जरूर करना. Psychiatrist, Prabhuji. Yeah, become a psychiatrist, a counselor, psychologist. You will not have space in your pocket to keep money. That much people are willing to pay. One person from Russia, I met him in Jagannath Puri, and I said, you are in India? And yes, I spent 6 months in India. In 6 months, how do you work? He was with his wife and child. So, how do you work? I worked 4 or 5 months. He was from Moscow. Then what do you do? Psychiatrist. And what do you do inside? Nothing. People give me some online. In COVID, it was online. Now some offline. For 1 hour in Indian currency, he charges 9,000 rupees. For 1 hour. And you know what he does in 1 hour? और बताओ क्या हालचाल? सब ठीक? कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे. And at the end he will write some antidepressant pills, जिससे आपको नींद आ जाएगा. टेंशन आने से पहले नींद आ जाएगा. बोले जैसी टेंशन आए इसको खा लो तो नींद आ जाएगा, टेंशन आएगा ही नहीं. जैसे वो एक जोक रहता है ना, सिर में दुख रहा है बहुत देर से तो क्या करूं ना, दरवाजे में अपना हाथ दे के मार लो, उससे क्या होगा ना, हाथ में दर्द देगा ज्यादा तो सिर का दर्द भूल जाओगे. तो like that. You cut your hand, so you'll forget about headache because you have different pain. Similarly, you are having depression, put some depression pill, you will fall asleep. अब सो गया तो क्या पता चलेगा जिंदगी में टेंशन क्या है, So, and he was telling it is in the boom of market, especially he said in COVID. I said people were working less in COVID, staying in home, eating food from their hands of their relatives. They're more frustrated. They cannot stay in home also. So we see, and अभी हम देख रहे हैं ना, so much communal violence is happening ना, between Hindus, Muslims, so many groups. वुमेन लोग के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, आप जो हालत हो गया आजकल के वर्ल्ड में, it's so pathetic, so pathetic. Cutting one lady in 35 pieces. Can you understand what kind of, मतलब, see, when you cut anything, blood comes out na, and you have eyes, can't you feel the pain? Yeah. So just imagine the person has same hands, the person has same eyes, the person breathes same oxygen. मतलब बाहर का चेसिस सेम है. चेसिस समझते हैं? चेसिस कवरिंग. तो मतलब उस बंदे का जो हार्डवेयर है, मेरा हार्डवेयर, दोनों सेम है. तो डिफरेंस क्या है? Why that person is not able to feel? He is rather happy. Oh, I have done some great work by killing one person, by shooting one person. And हमको कोई ऐसे बोल दे, हम तो बाप रे बाप देख के ही ऐसा लग रहा था टीवी में बेहोश हो जाऊंगा. How can somebody do? So what is the difference? उसका outer body, मेरा हार्डवेयर और उसका हार्डवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? तो डिफरेंस किस में है? सॉफ्टवेयर में. तो वॉट एवर डिफरेंसेस वी सी इन दिस वर्ल्ड, इवन क्रिएटिव चीजें मैं बोल रहा हूं, हमारे पास भी 24 घंटा है, टॉपर के पास भी 24 घंटा है, सबके पास 24 घंटा है. ऑलमोस्ट मसाला उतना ही रहता है, इतना कुछ खतरनाक नहीं रहता किसी का, राइट? इट सेड ना, एवरी सक्सेसफुल पर्सन एंड फेलियर बोथ हैव 24 आवर्स.
व्हाट डिटरमाइंस इज हाउ दे यूज इट, राइट? पता तो हमको भी रहता है, आपको पता है जो लोग फेल करते हैं एग्जाम में उनको जो मोटिवेशनल कोट्स ज्यादा याद रहता है, टॉपर के पास टाइम नहीं रहता मोटिवेशनल कोट्स देखने का। जो फेल होता है उसको सारे कोट याद रहते हैं, है ना, वर्क हार्ड, ये सब, लेकिन उस पे एक्शन नहीं ले पाता है वो, करेक्ट? सो द ब्रिज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज करेक्ट एंड एग्जीक्यूटिंग व्हाट इज करेक्ट, आपको समझ आ रहा है? समझ आता है, ये सही है, कल से सुबह उठूंगा, जरूर उठूंगा, फिर सुबह कुछ हो जाता है अलार्म बजने का, देखें कुछ कुछ होता है, नहीं उठ पाते, फिर क्या सोचते हैं, कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती है। अमेजिंग बात है, दुनिया की कोई शक्ति हमको रोकने आती भी नहीं है, ना मम्मी आती है रोकने, ना दोस्त आता है, ना सुबह सुबह मोबाइल भी कुछ नहीं बोलता है। कितने लोग का सुबह 5 बजे व्हाट्सएप में पिंग करता है, कोई कोई नहीं करता है कि नहीं? कितने लोग सुबह 5 बजे रील अपलोड करते हैं, ले 5 बजे मेरे को नया रील देखना, कोई नहीं डालता है सुबह 5 बजे। सो द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, हम जो सोचते हैं दुनिया मुझे नहीं रोक सकती, कौन हमें रोक रहा है फिर? अपना खुद का सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। आपको समझ आ रहा है? अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो सोचेंगे कैसे, राइट? ये जो सेम हमारा जो मन है जिसको हम माइंड बोलते हैं, द सॉफ्टवेयर, उसी से सारा प्रोडक्टिव काम भी होता है। हमको कुछ इच्छा करता है करने का, वी वॉन्ट टू प्लीज समवन, जैसे किसी का बर्थडे, हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं? बिकॉज हमारे मन में चलता है उसको ये अच्छा लगता है, उसको ऐसे करूंगा, ऐसे करेंगे, ये अरेंज करेंगे, तो वो भी तो माइंड में ही होता है ना। तो हम कुछ प्रोडक्टिव भी करना चाहते हैं, कहाँ पे चलता है वो? माइंड में। और डिस्ट्रक्टिव भी करना चाहते हैं तो कहाँ पे चलता है? माइंड में। तो वेदर माइंड इज व्हाट, माइंड इज फ्रेंड और एनिमी, व्हाट डू यू थिंक? प्रभु सॉफ्टवेयर, जी माइंड इज हाँ या बोलो। प्रभु जी माइंड इज normally enemy, but only it will become friend if it is under control of our intelligence. नॉर्मली एनिमी है प्रभु जी लेकिन कभी कभी फ्रेंड हो जाता है। जब हमारे इंटेलिजेंस से अंडर रहेगा तब फ्रेंड रहेगा, और अगर मन हम लोगों को काबू करे तो फिर हम लोगों को मन हमारे मन काबू में है, तो ये तो आप पूरा एकदम वो बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना, ऐसे मन को काबू में कर लेंगे, उसको हम चर्चा करेंगे मन को कैसे काबू में करना है। बट इट इज करेक्ट दैट द कंट्रोल माइंड इज फ्रेंड, एंड वील सी दैट सेम थिंग कृष्णा इज टेलिंग इन द भगवद गीता। I'll just share my screen. Are you able to see? So someone can repeat after me, it will be nice. Okay. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मा स्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। येनात्मैवात्मना जिता। Okay, one person. Next time we have a lot of shlokas. Next person can next time. Mona Lisa can do. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनास्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तितात्मैव शत्रुवत्। Yes, please read the translation. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for the one, just a minute, Prabhuji, actually it got minimized. But for the one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Yeah. So what example we can remember? नाइफ देखा? नाइफ, नाइफ काम का चीज है कि काम का चीज नहीं है? इज इट हेल्पफुल और इज इट डेंजरस? Prabhuji, depends on how we use it. How many of you have seen a surgeon? A surgeon's life revolves around knife only. बेसिकली जो भी उसका टूल है, घुमा फिरा के, छोटा नाइफ, बड़ा नाइफ, स्कैल्पल, ये सीजर, वो सब कुछ नाइफ ही है बेसिकली। बट विद दैट नाइफ सर्जन किसी का, डॉक्टर किसी का लाइफ बचा सकता है, एंड सेम नाइफ यूज करके पैसा दे नहीं तो गला काट दूंगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स नाइफ इज नॉट द प्रॉब्लम, हाउ द नाइफ इज यूज। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम वायरस में है। किसमें है?
virus. So if our mind is infected by virus, then that virus is actually making the mind do wrong things. समझ आ रहा है? सो कृष्णा भी यही बोल रहा है अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुम ऐसे मत सोचो कि माइंड ही सारा प्रॉब्लम का जड़ है. माइंड प्रॉब्लम का जड़ नहीं है. कंट्रोल्ड अगर माइंड हुआ तो तुम्हारा एनिमी हो जाएगा. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, he will act like your bandhu only, but shatruvat, it will become your shatru when if it is uncontrolled. Is it clear? तो नाउ ये अच्छा लगा सुन के, कैसे कंट्रोल करें माइंड को. बहुत अच्छा लगा. माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा. ओके, तो उसके लिए हम 2 R देखेंगे. R, 2 R. So 1 R is regulation, another R is reconnection. So we'll see the first R, which is called as regulation. So we will start with this shloka here. Okay, so other than Mona Lisa, someone else can repeat. This is one of the most famous verses of Bhagavad Gita regarding control of the mind. Okay. Yuktahara viharasya. Anyone please repeat? Yuktahara viharasya. युक्ताहार विहारस्य Yukta cheshtasya karmasu. युक्तचेष्टस्य कर्मसु Yukta swapnavabodhasya. युक्तस्वप्नावबोधस्य Yogo bhavati dukkha. योगो भवति दुःखः. युक्त वर्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेगुलेटेड. क्या होता है? रेगुलेटेड. आहार का मतलब ईटिंग. विहार का मतलब जानते हैं? बिहार, थोड़ा बिहार करने जा रहे हैं, मतलब घूमना फिरना, बेसिकली रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट. युक्त चेष्टस्य कर्मसु. कर्मसु मतलब कर्म क्या होता है? वर्क, जो हम काम करते हैं. जैसे आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर है अपना काम करता है, डेवलपर है कोड बनाता है, जो भी है. एंड युक्त स्वप्नावबोधस्य. स्वप्न देखते कब है? कब हम लोग स्वप्न देखते हैं? जब सोते हैं. तो कृष्णा इज टेलिंग 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन लाइफ. रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड स्लीपिंग, रेगुलेटेड वर्क, रेगुलेटेड रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब जो भी आपका सोर्स ऑफ थोड़ा एंजॉय रिलैक्स करने का जो भी रेगुलेटेड होना चाहिए. ये रेगुलेटेड होगा तभी आपका माइंड कंट्रोल होगा. बोले खाने से माइंड का क्या लेना देना भाई है? खाने से क्या लेना देना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रभु जी ने वो बताया था, द चैरियट एग्जांपल पता है किसी को? हॉर्सेस, स्ट्रिंग. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू सीन अ चैरियट? रथ देखा है? रथ कभी देखा आपने? रथ में क्या क्या होता है देखते हैं. व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ चैरियट? फर्स्ट, A chariot, हाँ जल्दी बोलो. chariot, horses, हॉर्सेस पहले तो हॉर्स रहेगा, तो जाएगा कैसे? ओके. सेकंड, चैरियट का बॉडी Chariot. रहेगा अपना, तो बैठेंगे कहाँ? या वेरी गुड. नेक्स्ट, और क्या है? बोलो जल्दी. and स्ट्रिंग rope, रहेगा प्रभु जी. अरे ropes स्ट्रिंग that रहेगा, bind. नहीं तो घोड़े को हाँ. बोलेंगे कैसे किधर जाना है? स्ट्रिंग चल चल या फिर घोड़े- कुछ डंडा रहेगा चलाने के लिए. या नेक्स्ट, हाँ. और क्या रहेगा? Wheels. हाँ, व्हील्स तो बेटा उसी में आ गया ना, मतलब बॉडी में ही हाँ. आ गया, जो उसका बॉडी है पूरा. चैरियट ड्राइवर प्रभु जी. ड्राइवर. हाँ, driver. घोड़ा तो गूगल मैप नहीं है सर, हमको जाना है न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, तो घोड़ा अपने से जाएगा. ठीक, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो ड्राइवर चाहिए. और एक पैसेंजर भी तो रहेगा, ऐसे थोड़ी घुमाएगा ड्राइवर. तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स. सो ये एग्जाम्पल कृष्ण देते हैं अर्जुन को हमारे पूरे सिस्टम को समझाने के लिए. ओके, सो हियर वेरी केयरफुली. सो दिस चैरियट इज द बॉडी, जो हमारा शरीर है ना, जो हमको दिख रहा है. जस्ट लाइक चैरियट में व्हील्स होते हैं, वैसे हमारे पैर हैं. यस. तो लाइक दैट ऑल थिंग्स. या फिर यू कैन इमेजिन कार ऑल्सो, लाइक अ कार. लाइक कार हैज हेडलाइट, वी हैव आईज. तो जैसे एक्सटर्नल बॉडी है बाहर का, वैसे हमारा चैरियट कैन बी कंपेयर्ड टू द बॉडी. नेक्स्ट क्या है? ये हॉर्सेस क्या है? देयर आर 5 हॉर्सेस. सो 5 हॉर्सेस आर द 5 सेंसेस. 5 सेंसेस क्या है?
क्या है? Smell, hear, see, या स्मेल करने taste. के लिए जो ऑर्गन्स हैं, देखने के लिए जो ऑर्गन्स, आपको पता है ना, आईज, नोज, ईयर्स, व्हाटएवर. So whatever we perform, these are called ज्ञानेंद्रिय. You understand ज्ञानेंद्रिय? ज्ञान इंद्रिय, जिससे आप स्मेल से पता चलता है यहाँ पे क्या बन रहा है, आंख से देख के पता चलता है वहां पे कौन है, आवाज से पता चलता है कि ना कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है. तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस. तो आप देखेंगे एक्सटर्नली हमारा बॉडी जो भी काम करता है इन सेंसेस के थ्रू करता है, करेक्ट? अगर केवल गाड़ी का डब्बा हो वो चलेगा क्या? विदाउट द हॉर्स नहीं चलेगा. सिमिलरली बॉडी हमारा काम कैसे करता है? थ्रू द एक्सटर्नल सेंसेस. बट सेंसेस को डायरेक्ट कौन करता है? दिस स्ट्रिंग. तो दिस स्ट्रिंग इज द माइंड. अगर 5 घोड़े को ऐसे लगा देंगे तो अपने आप चैरियट चलेगा क्या? यू हैव टू वाइंड देम एंड गिव देम, कंट्रोल देम विद द स्ट्रिंग. तो दिस स्ट्रिंग इज द माइंड. तो माइंड के डायरेक्शन से हॉर्सेस काम करते हैं, इधर चलो उधर चलो व्हाटएवर. बट केवल स्ट्रिंग और हॉर्स लगा देंगे तो काम करेगा क्या? कि स्ट्रिंग पकड़ने वाला भी तो एक चाहिए जो स्ट्रिंग को प्रॉपर वो देगा. तो दैट इज द इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि. एंड ड्राइवर कौन? ड्राइवर इज द इंटेलिजेंस. पैसेंजर कौन है? पैसेंजर कौन है? Soul. सोल हम ही है. समझ आ रहा है ना? हमारा सोल नहीं बोलने का. कुछ लोग बोलते हैं ना पैसेंजर कौन है? हमारा सोल. अरे तुम ही सोल हो, हमारा सोल क्या? समझ आ रहा है? तो अब आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रथ ठीक से चले. हॉर्सेस शुड मूव प्रॉपरली ना. कोई हॉर्स इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, आपको कैसे चलेगा? है ना? इज इट क्लियर? यू आर अंडरस्टैंडिंग? बट हॉर्सेस कंट्रोल किससे होते हैं? स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होते से हैं. प्रभु जी. या तो अगर आपको माइंड कंट्रोल करना है तो पहले हॉर्सेस भी तो कंट्रोल लेना चाहिए ना, है कि नहीं? हॉर्सेस अगर इधर उधर भागेंगे क्या ही कर लेंगे आप स्ट्रिंग से. एंड देयरफॉर ये जो रेगुलेशन कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, आर फॉर रेगुलेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड. क्योंकि अगर आप अनरेगुलेटेड रहेंगे तो आपके हॉर्सेस ही इधर उधर भाग रहे हैं, आप कहीं नहीं, यू विल लैंड अप नोवेयर एक्चुअली. एंड दिस हैज बीन सीन, दोज हु आर अनरेगुलेटेड इन देयर हैबिट्स, कभी भी खा ले रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, कितना भी सो ले रहे हैं, like there is one saying, if you sleep too less, if you sleep too much, you become lazy. If you sleep too less, then you become crazy. How many of you tried to sleep sometime for 2-3 hours only? अब देखना अगले दिन एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, मम्मी को फोड़ देंगे, मतलब दिमाग मत खराब करो, अभी परेशान हूं थोड़ा. समझ आ रहा है ना? You sleep less, you become crazy, and you sleep too much, you become lazy. So Krishna says our sleeping should be regulated. 6 to 7 hours we should take proper rest. So many problems, last में साइंटिस्ट को कुछ नहीं मिलता है तो स्लीपिंग पे ठोकते हैं, पता आपको? The greatest problem of hair fall of a person is not proper sleep. If you don't sleep properly, a hair fall problem. कुछ कैंसर हो यार, hair fall problem, है ना? कुछ भी हो जा रहा है, you are not taking rest. डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, सो नहीं रहा रात को. Those who do night duty too much, they have a lot of blood pressure because they don't sleep that time. Similarly, eating में, you don't know how much to eat, what time to eat, what time not to eat, what type of food not to eat. सबसे प्यारा KFC हमारा, कुछ भी हो जाता है तो स्विगी और जोमेटो तो है ही, they are like our cousin brothers only nowadays, Swiggy and Zomato. So we don't know what to eat, how to eat, we can eat. See, Krishna is not telling don't eat. Krishna is telling regulation mein. You eating fried, you eat in regulation. Vegetables and proper food, rice, dal, you eat more. Some fried items outside, you eat once in a while. Sugar items, these things, you eat little bit in modulation. Is it clear? But what has to be eaten? How much? Water, you drink properly, good amount of water every day. Similarly, recreation. भाई साहब पबजी में लगे तो लगे ही है, मम्मी पीछे चिल्लाए बेटा सब्जी खा ले, पबजी छोड़ दे, वो पबजी में लगा हुआ है, सब्जी नहीं खा रहा है, तो ना पूरे दिन. You know that one boy died of playing PUBG. He played for 13 hours on a stretch. Their parents had gone to some marriage, शादी में गए थे पेरेंट्स, और मम्मी पापा बिजी हो गए, वो कुछ रिलेटिव के शादी है, बेटा एक रूम में पड़ा हुआ है, बेड में खेल रहा है, शादी वाला घर है, हजारों लोग आते हैं. वो 13 hours खेलता रहा and he died of cardiac arrest.
because of just playing. His eyes are full red when he was playing, and the mobile was left on his chest and still it was on playing mode. You know, पगला जा रहे हैं खेल के. You know, when this government banned PUBG, है ना, Chinese है, बैन कर देंगे. You know what Chinese government said? हमको अब पता चला कि इंडिया में कितने बेकार लोग बैठे हुए हैं. They have nothing to do. Our greatest audience was India. Just by seeing the number of people who have installed PUBG, हमको पता चला इंडिया में कितने फालतू लोग बैठे हुए हैं, पूरे दिन PUBG खेल रहे हैं. And we are requesting the Indian government, please ये फालतू लोगों को हमें दीजिए ताकि हम उन्हें PUBG खिलाएं, है ना, कुछ पैसा कमाएं. This is the comment that the government is doing on Indian public. कि कुछ काम धंधा नहीं है, चला रहे हैं. So we don't know how to recreate. Recreation means we should go outside, take a walk, do some swimming, do some physical activity, yoga, exercise. That is recreation. Talk with our friends, you know, write something, you know, discuss some stories with the friends, spend some time with the parents. This is recreation. Gardening is good. And आजकल recreation मतलब mobile, right? That is not recreation. So regulated recreation. You can use mobile, you can use gadgets, no problem, but it should be regulated. And last is Yukta Karmasu, means your work. Don't work like donkeys. We see people are working whole day studying. I will tell you, when students join my class, every year, I am teaching from last 7 years. Every year when I enter classroom for the first time, new batch, I ask one question. कि मेरे से क्लास पढ़ने का मकसद क्या है? What is the ultimate goal of studying physics from me? Then different students tell different answers. Sir, physics improve होगा. Sir, physics में मजा आएगा. Sir, physics में groove ये होगा. Sir, ये होगा. A lot of answers. I said that is what you think. But what is my goal? My goal is, if you studying 1 hour today, after 1 month you should study 45 minutes. अगर वो हो रहा है ना, मतलब फिजिक्स समझ आ रहा है. टू वर्क मोर इज नॉट इंटेलिजेंस. मेरे से पढ़ता था जैसे एक लड़के की मम्मी आके बोली, सर बहुत अच्छा हो गया सर आपसे पढ़ के. पहले 1 घंटा पढ़ता था, आपसे पढ़ने के बाद 2 घंटा पढ़ता है वही चीज. मैं पागल है क्या फायदा हुआ फिर, है ना? मेरे से पढ़ने के बाद और ज्यादा पढ़ रहा है घर में. एक्चुअली आई वॉज ग्रोन, आई लाइक दिस ओनली. मेरा बचपन से टारगेट था मिनिमम पढ़ाई करना. एंड इसके वजह से मेरा प्रोसेसर बहुत तेज था. आई वॉज एक टाइम ओरिएंटेड पर्सन, ये ना, जल्दी करना है उसको. एंड इससे क्या होता है, आपका प्रोसेसर में जंग नहीं लगता है. आई नेवर वर्कड वेरी हार्ड, आई वर्क लिटिल स्मार्ट. आई मेड नोट्स प्रॉपरली, एवरीथिंग. एंड एकदम जो पढ़ना है बस उतना ही, नो डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी. बट नाउअडेज आई सी घिसते जा रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा घिस रहे हैं पढ़ाई में. कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है गाड़ी. फॉर स्टूडेंट्स. Similarly, for people also we see working 8 hours, 10 hours, 14 hours. Some people are working. फिर क्या होता है, वो कोड लिखते रहते हैं, पूरा कोड लिखते हैं 14 घंटा. और कोड लिखते लिखते यहाँ से सारे बाल उड़ जाते हैं. सोता होता नहीं, खाता कुछ नहीं. फिर वो क्या करता है, वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है. सपोज उसका सैलरी 15 लाख होता, 20 लाख होता है, वो 30 लाख कमा लेता है एक्स्ट्रा काम करके. और इधर से सारे बाल उड़ जाते हैं. फिर वो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए डॉक्टर बटरा को देता है जाके, डॉक्टर बटरा आप 10 लाख लो, अभी हेयर ट्रांसप्लांट मेरा कर दो. कोडिंग किया, बाल दिया, पैसा लिया. फिर वही पैसा बटरा को दिया, नकली बाल लगाया. अच्छा, बाल भी अब असली नहीं रहता, पता आपको, आपका ही पीछे का बाल निकाल के आगे लगा देगा. तो क्या फायदा? इससे अच्छा थोड़ा प्रसाद खाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, खुश रहो जिंदगी में, है कि नहीं? People are doing, you don't know, this is such a big business. People have so much depression and all this. So much money people spend on medical bills. इससे आप slow भी हो जाते हैं and your life is not balanced also. So इसीलिए हमारा काम balanced होना चाहिए. Work should be regulated कि हम कितना काम करते हैं fixed होना चाहिए. कब काम करते हैं, कितना करते हैं, कब सोते हैं, कितना सोते हैं. What we do, how much we do. What we do, how much we do. This should be defined. कितना खाते हैं, कब खाते हैं, समझ आ रहा है ना? कितना सोते हैं, कब सोते हैं. Now somebody may ask कि इसका कुछ रियल में है ना, demonstration. I'll show you one demonstration. You see, you have this flask, you know.
Have you ever tried? You just try in your home to hold this flask like this in your hand. बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 लीटर का बॉटल, उसमें क्या है, बट यू होल्ड दिस बॉटल इन योर हैंड फॉर 15 मिनट्स, ऐसे सीधा हाथ करके ऐसे पकड़े रहो. व्हाट विल हैपन? 15 मिनट्स ऐसे पकड़े रहो हाथ में, क्या होगा? कैन समवन टेल? Probably it will start to pain after हाँ, it some will start to pain. But did you do some work? कुछ काम तो नहीं हुआ, खाली पकड़े हुए थे. पकड़ने में कुछ काम होता है क्या? कुछ काम तो आगे नहीं बढ़ा, बस पकड़े थे. बट फिर भी एग्जॉशन हो रहा है कि नहीं? That means what? If you hold on to something, you lose energy, right? अब होता क्या है? Listen very carefully. This is the secret. है? A person who is not regulated, उसको पता नहीं है वो क्या करने वाला आज के दिन. जब खाना आएगा खा लेंगे प्लेट में, उसमें क्या है. जब नींद आएगा सो लेंगे, नहीं आएगा नहीं सोएंगे. That means उसको पता नहीं है whole day what he is going to do, correct? That means all the काम जो उसको करना है वो पूरा इधर सिर में बैठा हुआ है, पता नहीं है ना. सपोज मेरे को पता है मैं 9 o'clock ब्रेकफास्ट लूंगा, तो क्या वो थॉट मेरे दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि हर दिन उसी टाइम पे लेता हूँ, करेक्ट? वो रूटीन बन जाएगा, राइट? मेरे को पता है कितने बजे सो जाना है, इतना सोचना नहीं है उसके बारे में. सो जो बंदा अनरेगुलेटेड होता है ना, उसका माइंड पूरा क्लाउडेड रहता है, ओवरलोडेड. और ओवरलोडेड माइंड इस बॉटल की तरह है जो आप हाथ में पकड़ के रखें, होगा कुछ नहीं, सब काम घूम रहा है दिमाग में, आगे कुछ गाड़ी नहीं बढ़ेगा, बट आपका मेंटल एनर्जी ड्रेन होता जाएगा. और इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे पूरा दिन निकल जाता है, ऐसा लगता है थक गया हूं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है. देखा, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लाइक दिस? आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस. पूरा दिन निकल गया, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन थक बहुत गया. क्यों? क्योंकि उसी में पूरा अनप्लान्ड उसमें चला जाता है. एंड इसीलिए कृष्ण बोलते हैं फर्स्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज टू रेगुलेट. तो आर फॉर रेगुलेट. जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे, कृष्ण सेज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ऑफ माइंड विदाउट रेगुलेशन. इसलिए आप देखिए इसका लास्ट श्लोक क्या है, बोलिए. जस्ट रीड, सी, आई विल शो यू. सी व्हाट इज दिस? योगो भवति दुःखः. योगो मीन्स व्हाट विल हैपन by doing this. योगो, if you add, योग मतलब ऐड करना, अगर आप इस चीज को अपने लाइफ में ऐड करेंगे, दुख हा मतलब एंड, दुख मतलब प्रॉब्लम. all problems of your life will end if you just add yogo, all these principles, these 4 principles, if you add in your life. Is it clear? How many of you understood till here? Raise your hand. You can virtually raise, actually raise, whatever. ठीक है, गुड, वेरी नाइस, नाइस. अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना. सपोज किसी का चैरियट है, हॉर्सेस बहुत अच्छे हैं, एकदम ट्रेंड हॉर्सेस, ठीक है, स्ट्रिंग भी एकदम बढ़िया है, तो क्या गारंटी है वो सही जगह जाएगा? हॉर्सेस एकदम अच्छे हैं, ट्रेंड हॉर्सेस, स्ट्रिंग भी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. विल इट मेक श्योर दैट आई विल रीच माय डेस्टिनेशन? यस और नो? No. व्हाई? No, Prabhuji, no. The control will not be, the control has not been said. How is it? What is the quality of control? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. तो एक रिलेटिव नहीं, पहचान के एक जन थे. सो ही वाज गोइंग थ्रू अ हिल स्टेशन रोड एंड कार आराम से चल रही थी. कार में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, चक्का में कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम इन द व्हील्स, नो प्रॉब्लम इन एनीथिंग. एंड ही वाज राइडिंग स्लोली आल्सो, 20 किलोमीटर पर आवर. बट समहाउ कहीं पे घुमाना था, टर्न नहीं किया, ही फॉल ऑफ अ क्लिफ. बट समहाउ नथिंग हैपेंड. वो जाके गिरा नीचे और एक पेड़ में फंस गया. तो क्या कार में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं प्रॉब्लम. क्या टायर्स में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था. क्या स्पीड ज्यादा थी? नहीं थी. तो प्रॉब्लम कहाँ हो गया? जो उसको चला रहा था, स्टीयरिंग. ड्राइवर जो था, ड्राइवर ने थोड़ी सी गलती कर दी, जब घुमाना था नहीं घुमाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So similarly you think, even if my senses are good, even if my life is regulated, अगर मेरा वो ड्राइवर जो है, that is the intelligence is not nourished, then what will happen?
still I will land nowhere. Are you understanding? तो रेगुलेशन के साथ डायरेक्शन भी बहुत जरूरत है कि नहीं? जैसे एक बार मेरा दोस्त आया, आई वॉज इन कॉलेज, भाई जल्दी आ चलते हैं। तो मैं जल्दी से नीचे उतरा एंड ही वॉज इन बाइक एंड आई सैट ऑन द बाइक। कहाँ जा रहे हैं? उतना नहीं सोचना, चल, यू नो। सपोज आपको कोई ऐसे बोले, तू टाइम वेस्ट मत किया कर ये सब पूछने के लिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बाइक चल रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे आदमी को क्या समझेंगे? पागल बोलेंगे ना। वो बोल रहा है तू ऐसा क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट कर रहा है, बेटर मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं। ज्यादा जरूरी ये है कि किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, किधर जा रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे ना। कितना भी देर चला, कितना भी तेज चला, अगर गलत डायरेक्शन में चलाएगा तो कुछ फायदा होगा? सो सिमिलरली जिस तरह हम देखते हैं कि ड्राइवर जरूरत है क्या करने के लिए? डायरेक्शन देने के लिए। तो मैंने आपको बोला था देयर आर 2 R's फॉर कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो पहला R है रेगुलेशन, दूसरा R है रिकनेक्शन। ओके, जो हमको एक्चुअल डायरेक्शन दे सकता है। और कौन डायरेक्शन दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, सपोज अभिलाषा ने वॉशिंग मशीन खरीदा। अभिलाषा देख रही बहुत सारा बटन है, अभिलाषा को डायरेक्शन चाहिए कैसे काम करेगा। कपड़ा तो धुलेगा, वॉशिंग मशीन एकदम सही है, वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, नया है। तो अभिलाषा बटन दबाती है, बटन 1 ऐसे घूमने लगता है। फिर अभिलाषा सोचती है इसमें क्या डाला जाए, तो अभिलाषा क्या करती है? ऑरेंज जूस डाल देती है पानी की जगह, ठीक है। फिर अभिलाषा बोलती है कितना सर्फ डालें, तो 1 पैकेट सर्फ डाल देती है। फिर सोचती है ये बटन से क्या होगा, हर बटन थोड़ा थोड़ा दबा के देखती है, समझ आ रहा है? और घूमते 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 ड्रेन वाला घुमा देती है, तो घूमते घूमते पानी निकल जाएगा। यस। तो वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे काम करेगा ये, थोड़ा दबा के देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, लेकिन वो इट्स नॉट ए इंटेलिजेंट मेथड। बेस्ट तरीका क्या है मशीन को चलाना? कैसे कैसे पता चलेगा? To read the manual provision. मैनुअल आता है ना साथ में। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये बटन दबाएंगे तो पावर ऑन होगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ये बताएंगे तो ड्रायर चलेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 आपको इतना कप लिक्विड वॉशिंग पाउडर डालना है, ऐसे। तो सिमिलरली इवन इफ आवर माइंड वी ट्राई टू कंट्रोल ओनली बाय रेगुलेशन, उससे कुछ होगा नहीं। रेगुलेट तो हो जाएगा बट डायरेक्शन नहीं मिलेगा हमको। और डायरेक्शन कौन दे सकता है? जो एक्चुअली जानता है सिस्टम के बारे में, दैट इज कृष्णा। Only when we reconnect with Krishna, Krishna's message in the Bhagavad Gita, जो हम आगे भी देखेंगे, mainly 9 chapter 10 chapter बहुत डिटेल में कृष्णा बताएंगे how to reconnect with Krishna। तो वहां पे हम देखेंगे कि only by reconnection through Krishna we can get direction। तब हमारा जो पूरा चैरियट है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो घोड़ों को आप कितना भी अच्छा कर लो, रस्सी को कितना भी मजबूत कर लो, अगर ड्राइवर आपका सही जगह नहीं लेके जा रहा है, राइट, दैट इज व्हाई यू सी। वही एग्जाम्पल देने के लिए भगवान ने भगवत गीता में, आप देखिए महाभारत में क्या किया। कृष्णा वॉज नॉट द वॉरियर, कृष्णा वॉज सारथी। सारथी। सारथी, पार्थ सारथी, द डायरेक्शन गिवर ऑफ अर्जुन। कृष्ण सेज, अर्जुन यू हैव स्किल, आई डोंट नीड टू गिव यू स्किल। स्किल मिलना बहुत आसान है, डांस सीखना है डांस टीचर के पास जाओ, खाना सीखना है शेफ के पास जाओ, समझ आ रहा है, मैथ सीखना है मैथ टीचर के पास जाओ। स्किल अर्जन करना बहुत इजी है, लेकिन विल अर्जन करना इतना आसान नहीं है। सो कृष्ण गेज माय डायरेक्शन विल गिव यू विल, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड वेयर टू डू। सो देयरफॉर कृष्ण गेव डायरेक्शन, नॉट द स्किल। ओके, तो अब ये रिकनेक्ट कैसे करें? तो कृष्ण डायरेक्टली बताते हैं भगवत गीता में, आप देख सकते हैं, इट इज अराउंड 6.9 that shloka around there, कि the way of connecting to Krishna is through meditation, and I don't want to go into detail because for late ho raha hai, but I'll just give all of you a chance to read yourself. You can just find it on internet, so I'll just tell the shloka number. I have written that, bahut maine I wrote the number exactly where you will find it. Yeah, you will find it in 6.13 onwards. Okay,
सो 6.13 से 6.32 तक आप लोग पढ़िए। थोड़ा ज्यादा श्लोक है इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको जिस्ट में बताता हूं कि वहां पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं। बेसिकली कृष्ण पहले बोल रहे हैं कि मेडिटेशन इज द वे टू कनेक्ट टू मी, एंड देन कृष्ण इज टेलिंग हाउ टू मेडिटेट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेडिटेट? कृष्ण इज सेइंग फर्स्ट यू हैव टू सिट स्ट्रेट। बोले हाँ सर ये तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोले? योर चिन शुड बी ऑन द सेम लेवल एज द शोल्डर, योर आईज शुड बी half open, half closed, pointed towards your nose. Krishna says there should be no desire in the mind, no fear of past, no thoughts about the fear of the past or thoughts of the future. You have to meditate on my internal form within your heart. Then Krishna says there you have to go to a secluded place where nobody can come, no sound should come. Okay, your back should be fully straight. एंड कितने देर के लिए करना है? एटलीस्ट फॉर मोर देन 8 hours एट ए स्ट्रेच। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू कैन डू इट? एंड और भी है, आप आगे पढ़ेंगे। यू कैन नॉट बिकम एंग्री ऑन एनीवन, यू कैन नॉट डिजायर टू मेरे को खाना क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो मिला खाया, जो नहीं दिया। फर्स्ट यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट फॉर दैट, क्योंकि सेक्लूडेड प्लेस इज फॉरेस्ट। बट फॉरेस्ट में भी डिस्कवरी वाले कैमरा लेके घूमते रहते हैं, you know. So how many of you think you can do that? आप कभी एक दिन मेरे को आधा घंटा सीधा बैठ के दिखाओ, एकदम सीधा आधा घंटा कंटिन्यूअस, ठीक है? बस बैठ के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। समझ आ रहा है? हमने तो बहुत कोशिश कर लिया, नहीं होता है। सो आप उसको डिटेल में पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। और मजा तो आएगा पढ़ने में, फिर आप देखेंगे कि उसको फॉलो करना है। फिर आप क्या बोलेंगे? सरकार हमसे नहीं हो पाएगा। और यही चीज अर्जुन ने भी बोला, सरकार हमसे नहीं हो पाए। क्या बोल कृष्ण? आप सोच रहे हैं द चैप्टर नेम इज ध्यान योगा, एंड अर्जुन इज आउटराइटली टेलिंग कृष्णा ये ध्यान योगा चैप्टर में ध्यान नहीं हो पाएगा। कृष्णा इज uses the word you are impractical Krishna. You see, I will show you the shloka. I have opened it here. Is it? हाँ ये तो anyone can repeat after me. Arjuna uvacha 32 तक कृष्णा is telling the process of meditation. अभी please repeat. Arjuna uvacha Arjuna uvacha योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता yoyam yogastu tvaya prokta साम्येन मधुसूदन samyena madhusudana एतस्याहं न पश्यामि etasyaham na pashyami चंचलात्वात् स्थितं स्थिरम्। chanchalatvat sthitam sthiram। तो अर्जुन ने क्या बोला? यो यम, ये जो भी आपने बोला, योगस द मेथड ऑफ योगा मेडिटेशन, त्वया प्रोक्ता जो आपने बोला, ठीक है ना, अपने से नहीं बोल रहा, आपने जो बोला, साम्येन पूरा कंक्लूजन में जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हे मधुसूदन, एतायाहम न पश्यामि, अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये होगा कैसे। क्यों? बिकॉज माइंड इज सो चंचलात्वत्। अरे भाई साहब, ये काम में तो इतना कुछ सोचता है, ये क्या होगा कल स्कूल में, मम्मी टिफिन क्या देगी, वो क्या होगा, ये क्या होगा, दोस्त क्या बोला, मेरा उस पे कमेंट कितना आया, मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपने देखा है? अभी आप क्लास कर रहे हैं, यू ऑनेस्टली टेल हाउ मेनी थॉट्स हैव कम। कब खत्म करेगा ये क्लास, लेट हो गया, चालू नहीं कर रहा है, मेरे को वीडियो ऑन करने तो नहीं बोलेगा, आज मम्मी क्या बना रही है खाने में, हाँ रोटी बना रही है, राइस बना रही है, समझ आ रहा है? एंड वाई? एक तो चंचल है, स्थितम स्थिरम, इट इज नॉट स्थित स्टेडी, एंड स्थिर भी नहीं है, इट इज नॉट रेस्टफुल। आपको समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है, अर्जुना said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and undurable. अरे एक दिन अगर कर भी लिया, अगले दिन तो कभी नहीं कर पाऊंगा। For the mind is restless and unsteady. सोचो इतना बोलने के बाद, बोला भाई साहब हमसे, एंड कौन बोल रहा है? अर्जुना। And you know, Arjuna had so much power. It is given in the Mahabharata. It is, you can also find, it says, Arjuna says one more shloka, that Arjuna had the power कि he could direct किस direction में wind blow करेगा। Suppose अर्जुन को तीर चलाना है वेस्ट के तरफ, तो अर्जुन बोलेगा wind has to blow towards west, तो वेस्ट की तरफ जाएगा। आप लोग में से कितने को है इतना शक्ति
कि आप विंड का डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, आज हवा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहेगा, आप नहीं कर सकते। तो अर्जुन बोल रहा है कि हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, इतना पावर है, लेकिन इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। और आप जो बोल रहे हैं बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? यू रीड, आप, मैं आपको बेसिक बताया, आप 13 से लेके 32 तक पढ़िए। अगर आपको प्रैक्टिकल लगे तो गिव मी अ कॉल, ओके? हमको तो नहीं लगता किसी को प्रैक्टिकल लगेगा। एंड देयर इज लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ, यू नो, आजकल आप जितने भी टाइप ऑफ ये सब देखते हैं, चक्र साधना, ये अष्ट चक्र पे फोकस करो, फिर वो किसी फोटो पे मेडिटेट कराते हैं, किसी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉइंट पे मेडिटेट कराते हैं, ब्रीदिंग पे मेडिटेट कराते हैं कि अपने सांस पे आप फोकस कीजिए। कोई बोलता है अपने बॉयफ्रेंड पे फोकस कीजिए, उसका सुंदर मुखड़ा याद कीजिए, बोलता है गर्लफ्रेंड पे फोकस कीजिए, कोई बोला है ओम पे फोकस कीजिए, सब अलग अलग कुछ कुछ बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे वॉट एवर प्रोसेसेस, वॉट एवर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर टेलिंग, इट लाइज बिटवीन फ्रॉम 16.12 टू 16.32 ओनली। उसी में से कुछ उठा के मेथड बनाया गया है। बट अर्जुन इज क्लियरली टेलिंग दैट इट इज not possible to execute, it is impractical. Are you understanding? Now why it is impractical? Let me tell you. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं गीता में, मतलब वो एक मेथड है, बट वो मेथड क्यों नहीं कर सकते ये आपको मैं, इम्प्रैक्टिकल क्यों है, स्पेशली अभी तो और इम्प्रैक्टिकल है। पहले के 5000 साल पहले जब इतना शांति था, कोई गैजेट नहीं था, कोई वाईफाई डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था, तब अर्जुन बोल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल। आजकल के डेट में तो छोड़ ही दो। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फैन इन योर रूम? सबको अपने रूम में फैन दिख रहा है? सब लोग ऊपर देखो, फैन दिख रहा है? मेरे रूम में भी है फैन, ऊपर घूम रहा है। ओके, ना एक टास्क है। टास्क ये है कि फैन चल रहा है, यू कैन नॉट स्विच ऑफ, आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते फैन का, लेकिन चलते हुए फैन को आपको रोकना है। You need to stop the fan without turning off the switch. What are the methods? Let us see the bright minds of India. प्रभु जी हम लोग रेगुलेटर को 0 में करते हैं। अरे रेगुलेटर टच नहीं कर सकते, वो सब चीज आप टच नहीं, स्विच, करंट, उस सब के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों का मेन बोर्ड ऑफ कर देंगे, करंट का मेन बोर्ड ऑफ कर देंगे, बहुत अच्छा, लेकिन वो नहीं कर सकते। मेन बोर्ड ऑफ मतलब Putting one stick in between the fan blades. अरे जबरदस्त, एक डंडा ले लीजिए प्रभु जी, खड़ाक से लगा दीजिए, ठंग, थोड़ा लगेगा लेकिन रुक जाएगा, है कि नहीं? वेरी नाइस मेथड। और कुछ? प्रभु जी तार काट दो। तार काट दो मतलब बेसिकली आप करंट सप्लाई को ही काटने का घूम फिर के बात करते हैं, कैसे भी काटो। कोई लिख रहा है कि प्रभु जी हाथ घुसा दो, प्रभु जी भले ही आपका हाथ कट जाए लेकिन फैन रुक जाएगा, प्रभु जी, है कि नहीं? अच्छा, कोई बोला बाय फोकसिंग ऑन द स्पीड ऑफ द फैन। ओ माय गॉड, इतना पावर है क्या किसी में? अरे भाई साहब, मतलब फोकस करेगा स्पीड ऑफ फैन में तो स्पीड ऑफ फैन घट जाएगा। जो भी है उसको प्रणाम मेरे तरफ से, बहुत शक्ति है आपके पास। यू नो, आई विल क्लोज माय आईज, अमेजिंग, आई विल क्लोज माय ये सबसे अच्छा आंसर था, आई विल क्लोज माय आईज। और एक जन बोला दूसरे रूम में चले जाओ, तुम्हारे लिए फैन बंद हो जाएगा। यू नो, यूथ लोग को क्लास देने का फायदा है, सबसे जो एकदम गोल्डन आंसर्स रहते हैं ना, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्लोज योर आईज। सो you see, somehow either you have to cut the line or you have to obstruct it. But obstruct करने का एक प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, फोन में स्लो मोशन कर लेंगे। भाई साहब, आप लोग कहाँ, किस प्लेनेट से आए? इतने बड़े बड़े आंसर तो मैं कभी नहीं सुना है ना। somebody is writing फोन में स्लो मोशन कर लेंगे उसको। Okay, nice, but I am little technologically not so advanced. I am looking for simpler answers. So एक तरीका क्या है, डंडा ऐसे लगा देंगे तो रुक जाएगा, ये फिर हाथ से ब्लेड पकड़ लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डंडा से हाथ से रोकने से प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे ही डंडा हटाएंगे क्या होगा? जैसे ही डंडा हटाएंगे क्या फिर से घूमने लगेगा? Begin to rotate. हाँ कि ना? मतलब जब तक उसमें करंट सप्लाई है
वो चलेगा। जबरदस्ती आप रोक सकते हैं हाथ से, डंडे से, लेकिन जैसे ही डंडा हटा फिर से वो चलना चालू कर देगा। सो सिमिलरली आवर माइंड इज कॉन्टेमिनेटेड विद मेनी नेगेटिविटीज। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, द चैप्टर नेम इज ध्यान, मेडिटेशन। Meditation is like forcibly trying to control the mind. But before meditation comes purification of the mind. Unless and until your mind is purified of the contaminations it has, you will not be able to meditate constantly. So that is the main problem. जैसे आप डंडा लगा के जबरदस्ती तो रोक देंगे, लेकिन जैसे ही डंडा हटाएंगे फिर घूमने लगेगा। So इसीलिए आपको क्या करना होगा? करंट सप्लाई बंद करना होगा आपको। So therefore that is why control of the mind is so difficult. तो ये सब method, it's not that it's not a method of meditation, it's meditation, but before this meditation we need to purify the mind. And the only way to purify the mind, the most powerful, the most simplest and the most recommended way to purify the mind in this jet age of Kali, where we don't have so much time, is to chant the name of Krishna. And इसके बारे में और elaborate discussion होगा, how it works, how to chant. But this chanting of the name of Krishna, specifically this 16 syllable mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो ये जो 16 syllable mantra है, ये कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है. This mantra is recommended as Maha Mantra. That this 16 mantra, anybody who chants, it directly purifies our mind. And you will see, if you chant this mantra, for you focus will become very simple. Your mind will become so controlled, so peaceful. इतना परेशान नहीं होंगे, कोई कुछ बोल दिया तुम गधेड़े हो, ठीक है, तो बोला आप तुम बहुत महान, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जो भी है, I know what I am, why you have to tell. And so you will see the mind start becoming purified. And अपने आप purify होगा, तो आप meditation अपने आप आपका होने लगा. You will be able to meditate and focus more on this mantra. So this mantra word is made up of 2 syllables, man and tra. You know, man means mind, tra means trayate, means deliver. जैसे संस्कृत जो है ना बहुत ही ना साइंटिफिक लैंग्वेज है, you know, जैसे इंग्लिश की तरह नहीं है. स्टूडेंट, ये क्या होता है? स्टूडेंट, डेंट के साथ स्टू का क्या लेना देना है? बट द मीनिंग इज छात्र, you know. But you go to Sanskrit, you know, what do they call slippers in Sanskrit? Anyone knows? चप्पल, चप्पल को क्या बोलते हैं? चप्पल इज अ वेरी चीप हिंदी वर्ड. शूज को क्या बोलते हैं? पादुका. पादुका इज वन वर्ड. या पादुका थोड़ा बहुत एलिवेटेड पर्सनैलिटी के लिए बोलते हैं, जो बहुत बड़ा, कोई हम जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए. इट इज कॉल्ड पाद त्राण. पाद मीन्स योर लेग्स, त्राण मीन्स विच गिव्स रिलीफ. नॉर्मल चलेंगे, कुछ कंकड़ पत्थर लगेगा, दुखेगा. बट पाद त्राण मीन्स समथिंग ऑन विच यू प्लेस योर लेग, इट विल गिव यू रिलीफ. सो सिमिलरली मन त्राण, मन त्राण, दैट विच गिव्स रिलीफ टू द माइंड is called mantra. Okay, so next time we will see this mantra, and Prabhuji आपको बताएंगे how to chant the mantra. He has been chanting from last 18 years. He has taught me also how to chant, but it's a very, very powerful method. And it's the easiest method I am telling you, जो आप कर सकते हैं. और मैं चाहता हूं कि आप 16.12, 13 से 16.32 तक पढ़ें, और पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे आए कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा. और अगर आपको लग रहा है हमसे हो पाएगा, तो अगले क्लास में प्रभु जी से पूछिए, प्रभु जी हमको तो लग रहा है हमसे हो पाएगा, हमको मंत्रा की कोई जरूरत नहीं है. I will personally come to your home and touch your feet if you can do meditation even for 1 week. But you do this chanting, Prabhuji next time he will teach you how to chant. You do this chanting for 7 days. You don't have to chant for 1 month, and you see the transformation. From last 7 years में इतने लोगों से मिल रहा हूँ, कभी कभी अपना मेरा चैंटिंग ठीक नहीं होता, किसी का इफेक्ट सुन के तेरा इतना काम कर रहा है क्या, अरे आपने ही तो बोला था, तो फिर ना हाँ काम कर रहा है ना. इट्स वेरी पावरफुल मेथड चैंटिंग. सो ये 2 चीज से हमने डिस्कस किया, रेगुलेशन एंड रिकनेक्शन. ये 2 चीज अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट योर माइंड विल बी कंट्रोल्ड. एंड जैसे ही माइंड कंट्रोल होगा, सेंसेस कंट्रोल हो जाएगा,
एंड जैसे ही सेंसेस कंट्रोल होगा, योगो भवति दुःखः, यू विल बी सिचुएटेड इन हैप्पीनेस। इज इट क्लियर? बट एक और चीज है, क्रक्स ये है कि अर्जुन उसके आगे भी क्वेश्चन पूछे, अरे वो भी डिफिकल्ट है चैंटिंग में, मन इधर उधर भाग जाता है, हरे कृष्णा करते करते कुछ और सोचने लगता है, तो फिर क्या करो? Even that is not so easy, but Krishna will tell some practical tips of how to control the mind by chanting. Okay. We have any question? Any one or two question? Because I think we are running late little bit. I am not regulated in giving class, and I am giving class on regulation. One person was telling he had a seminar in MIT. ये महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, बिहार वाला, अपना यूएस वाला MIT, Massachusetts. So he said, and he had a seminar on anger management, and he went, everything was ready, the PPT was ready, everything. And when he went on the stage, the projector was not working. And 1 minute, 2 minutes, he was standing कि first slide आएगा तो कुछ बोलूंगा. And he said he was about to blast on that manager, and he remembered, what is the topic? Anger management. So similarly, my topic today was regulation, but somehow I became little late. So thank you for tolerating me. For any questions and queries, please feel free to ask me also and Prabhuji also. Thank you for your patient hearing. Okay. So next class आपके जीवन का मैं बता रहा हूँ सबसे important class है, ठीक है, आप मिस मत कीजिए। बहुतों ने 18 साल से प्रभु जी कर रहे हैं, lot of Bhagavad Gita classes he is giving, but I can tell the most important of all lectures that he ever gives to anyone is the day when he tells you what to chant and how to chant, how to meditate on the mantra. Okay. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath.